Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are practicing the exercises that we are doing during this video classes. Children, you know that we are doing warm-up exercises that is given in your book, in your maths book, and I hope you have purchased the book also. The name of your book is Perfect Composite Mathematics, and this is for class 2. And we have started this warm-up exercise that is given on page number 9, from page number 9 to page number 13. Questions are given. Children, I have always told you that these warm-up exercises are actually a revision or recapitulation of what you studied in class 1. But these are important to brush up what you have studied in your previous class. अब अपने previous class में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो एक तरह से brush up हो जाता है through this warm-up exercise. Children, ये जो एक्सरसाइज है इसमें से हम अब तक कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक. टोटल 21 क्वेश्चंस है एंड वी हैव कंप्लीटेड टिल 16. सो फ्यू आर लेफ्ट दैट विल ट्राई टू कंप्लीट 2 or 3 in today's video itself. Children, let's see which exercises we have done. We have done numbers forward counting from 1 to 100. Then we have done ones and tens numbers and their number names. Then we have completed expanded form and short form. Then what comes before, what comes after, and what comes in between. Then we have done arranging numbers in increasing order, arranging numbers in decreasing order. After that comes circling the smallest numbers and circling the greatest number. That also we have done. Then question number 12 was putting the symbol of greater than and smaller than. That also we have done. Another question was adding on number line. Addition on number line, that we have done, and subtraction on number line. These two also we have done. Then in my previous video, I completed with you find the sum and find the differences. Find the sum means addition and find the differences means subtraction. So till here we have completed. Now it's time for question number 17, and it is a sort of statement sum. Statement sum आप है, लेकिन आपको इसमें statement नहीं लिखना है. That I will teach you later on when we'll continue with the chapters of lessons of class 2. Then I'll tell you how to write statements. Here most of the things are given, you have to only calculate. Let's see what you have to done in this question number 17. We'll start here. Warm up, and it is question number 17. Question is, there are 21 dogs, 33 goats and 15 cows in a field. How many animals are there all together? What you have to do? Let me read the question once again. There are 21 dogs, 33 goats and 15 cows in a field. How many animals are there all together? Children, here total number of animals is asked. Total number means addition. This is also a question of addition, where generally in senior classes we write statement, but here you need not have to write statement. You have to simply add the number of animals. Let me tell you, let me write the question first. There are 21 dogs,
33 goats and 15 cows in a field. Children, you can read this question in your book on page number 12. पेज नंबर 12 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में. इफ यू आर हैविंग बुक, प्लीज ओपन दैट बुक. क्वेश्चन नंबर 17. How many animals are there all together? So this is the question. Now children, whenever such questions are there, first we have to find what is asked in the question. What is given is there. पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में क्या हमें पता करना है. हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर कितने एनिमल्स हैं. हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर. कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है टोटल ऑफ ऑल. कुल मिलाकर कितने एनिमल्स हैं. तो कहाँ पर कितने एनिमल्स हैं. हम ये है कि 21 डॉग्स हैं, 33 गोट्स हैं और 15 काउस हैं. कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं, इतने हैं. यहाँ पे लिखा है फील्ड में है. अगर फील्ड में नहीं है तो किसी फार्म पे है, कहीं पर भी है, इतने एनिमल्स हैं. सो यू हैव टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स. जब भी टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हम पता करते हैं, वी ऐड. हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है. जब ये ऑल टुगेदर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऐड करना है. ठीक है, जहाँ भी इस तरह का ऑल टुगेदर लिखा होगा, इसका मतलब है ऐड करना है. तो चलिए ऐड कर ले. लेट्स स्टार्ट. जैसा आपकी बुक में थी, आई विल डू इन दैट वे ओनली. इट इज ऑलरेडी गिवन. इस तरह से बॉक्स बना है. यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो. डॉग्स, then there is this box and goats, then another box and cows. Now children, you can see that in your book it is given in this format. इस तरह से दिया हुआ है. अगर नहीं दिया होता, अगर इस तरह से नहीं दिया होता, तो ये हमें खुद से करना पड़ता फिर कि डॉग्स इतना, गोट्स इतना, काउ इतना, टोटल इतना, ऐसे. लेकिन यहाँ ऑलरेडी बॉक्स बनाया हुआ है. डॉग्स, गोट्स, काउज और एनिमल्स लिखा हुआ है और प्लस का निशान भी है. प्लस का निशान है मतलब प्लस का सिंबल है, मतलब प्लस करना है. ओके, सिंबल ऑफ प्लस से ही पता चल जा रहा है कि आपको प्लस करना है. चलिए, तो डॉग कितने हैं, 21 है. गोट कितने हैं, 33 है ना. काउ कितने हैं, 15. नाउ यू हैव टू ऐड दिस. कैसे ऐड करेंगे, 3 वी हैव 3 नंबर्स टू ऐड. आपको मैंने पिछले वीडियो में ऐड करना सिखाया था कि किस तरह से हम 2 नंबर को ऐड करते हैं. यहाँ पे हमें 3 नंबर्स ऐड करने हैं. तो हम तीनों एक साथ नहीं ऐड करेंगे. पहले हम 2 नंबर करेंगे, फिर तीसरा नंबर ऐड करेंगे. फर्स्ट विल ऐड 2 नंबर्स. अब यहाँ पर 1 है और ये 3 है और ये 5 है. पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, 3 and 1. 3 और 1 को ऐड कीजिए. 3 को माइंड में रखिए, 1 को फिंगर पे रखिए. 3 है, 3 माइंड में. 3 के आगे से गिनिए. 3 के आगे क्या आएगा, 4. तो 3 + 1 इज 4. नाउ वी हैव 4 और ये कितना है, 5 है ना. 3 + 1 इज 4. आप चाहो तो लिख सकते हो
3 + 1 = 4 और फिर ये है 5, उसमें ये 5 को ऐड करना है। तो 4 और 5 में से बिगर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5 है ना। तो 5 को माइंड में रख लो, कीप द 5 इन योर माइंड एंड 4 ऑन फिंगर। 5 को माइंड में रखिए, 4 को फिंगर पे रखिए। अब जो माइंड में नंबर है 5, उसके आगे से फॉरवर्ड काउंटिंग करना है। 5 नहीं, 5 के आगे से, 5 के आगे क्या आता है, 6 7 8 9। फिर से देखिए, 5 के बाद 6 7 8 9, मतलब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, 9 हो गया। 3 + 1 4, 4 + 1 4 + 5 9, ठीक है, ये हमारा हो गया 9। नाउ कमिंग टू दिस वन, 2 3 and 1, 2 3 and 1, 3 + 2 कीजिए या 2 + 3 करके देखिए। ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है माइंड में कैलकुलेट करना, तो अगेन यू कैन डू दैट। जो बिगर नंबर है 3 को माइंड में रख लीजिए, 2 को फिंगर पे रख लीजिए। 3 माइंड में है, 2 फिंगर पे है। माइंड में जो 3 है उसके आगे से कितना, 4 5, कितना हो गया, 5। तो 2 + 3 = 5 और 5 में ये 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। सो आवर आंसर इज 69। टोटल कितने एनिमल्स हैं, 69 एनिमल्स। डॉग, गोट और काउ मिलाकर टोटल 69 एनिमल्स हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ यू हैव सीन, इफ यू वांट टू नोट, यू कैन नोट डाउन, then we'll do the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Priya had 46 sweets. She gave away 12 sweets. How many sweets were left? फिर से देखें, प्रिया हैड 46 स्वीट्स। प्रिया के पास 46 स्वीट्स थे, थे। शी गेव अवे 12 स्वीट्स, उसने उसमें से 12 स्वीट्स दे दिए। हाउ मेनी स्वीट्स वर लेफ्ट, कितने स्वीट्स बच गए। क्या करना है इसमें, सब्ट्रैक्ट करना है। वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 18। Priya had 46 sweets. She gave away 12 sweets. How many sweets left, कितने स्वीट्स बच गए। चलिए क्वेश्चन देख लिया आपने। अगेन दिस क्वेश्चन इज गिवन इन योर बुक एंड इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 12. You can read from there or you can read from the board. प्रिया had 46 sweets. प्रिया के पास कितने स्वीट्स हैं, 46. She gave away. Gave away माने दे देना, मतलब अगर मेरे पास कोई चीज़ है उसमें से दे देना, निकाल देना। कितना दिया, 12. हाउ मेनी स्वीट्स वर लेफ्ट। तो जब भी आपको ये वर्ड दिखता है ना, हाउ मेनी लेफ्ट, तो ये जो लेफ्ट वाला वर्ड होता है, ये लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट नहीं है, इसका मतलब होता है बचना, कितना बच गया। ठीक है, जब ये लेफ्ट वर्ड देखते हो आप मैथ्स में, हाउ मेनी लेफ्ट जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो ये लेफ्ट का मतलब होता है माइनस वाला क्वेश्चन, मतलब इसमें ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा वर्ड मिलेगा, हाउ मेनी लेफ्ट, हाउ मच लेफ्ट,
तो ये जो लेफ्ट वर्ड है इसका मतलब है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये पहचान है जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये लेफ्ट वर्ड जो है ये सब्ट्रैक्शन के लिए है। क्लियर? ओके। अब क्या करना है, तो हमें क्या माइनस करना है, जितना है उसमें से कितना दिया, वो दिया हुआ दे दो, निकाल दो। जितना है उसमें से जो दिया है उसको निकाल दो, वट एवर इज गिवन टेक इट अवे। तो जो बच जाएगा वो हमें बताना है। तो कैसे करना है, देखिए हम जो बुक में दिया है जिस तरह से बॉक्स, विल राइट इन दैट वे ओनली। ओके, टोटल स्वीट्स कितना है, टोटल स्वीट्स है 42 है ना, 46 स्वीट्स है। ठीक है, अब इसमें से कितना दे दिया गया, गिव अवे 12। नाउ हियर यू कैन सी द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, दैट इज माइनस। माइनस का साइन है, मतलब अब इसे हमें माइनस करना है। माइनस भी मैंने आपको सिखाया था, अब आपको लाइन ड्रॉ करके फिर उसको कट करके करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम फास्ट सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जो भी सब्ट्रैक्ट करना है उसके आगे से फॉरवर्ड काउंटिंग शुरू करना है। जो नंबर भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसके आगे से गिनिए, और कहाँ तक गिनिए, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वहाँ तक गिनिए, बस उतना ही काउंटिंग करना है। 2 के आगे से काउंट करिए 6 तक, 2 के आगे 3 4 5 6, कितना हुआ 4, कितने फिंगर्स हैं 4, वी विल राइट हियर 4। फिर से देखिए 2 के आगे से गिनेंगे 3 4 5 6, 4 विल राइट हियर 4। यहाँ पे 1 के आगे से काउंट करेंगे 4 तक, 1 के आगे से गिनिए 2 3 4, कितनी उंगलियां हैं 4, will write here 4. Our answer is 44 sweets. क्या आंसर आया हमारा 44 sweets. Okay, you can note down. Okay, now let's do the next question. What is the next question? Next question हमारा क्या है? Question number 19 given on page number 13. Page number 13. The question is fill in the blanks. Fill in the blanks. अब क्या है ये देखना है, पहले क्वेश्चन में क्या है आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट आई राइट द क्वेश्चन। Now listen, look at this question. 6 plus 6 plus 6 equals to blank multiplied by 6. Now this is actually a question of a repeated addition and multiplication. Repeated addition and multiplication क्या होता है? Repeated addition मतलब किसी नंबर को बार बार ऐड करना। किसी भी नंबर को बार बार ऐड करने पे क्या आंसर आता है, सेम वी विल गेट बाय मल्टीप्लाइंग। जैसे अब ये तो हमारा क्वेश्चन है, मैं इसे छोटा नंबर से आपको दिखाती हूँ। जैसे है 2 + 2, ये मैंने रिपीट किया, दोनों नंबर सेम है, 2 + 2 है ना। मतलब कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 1 2 टाइम्स ही हो रहा है।
मतलब कि 2 टाइम्स 2, ये जो साइन है क्रॉस का, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। कितनी बार, अगर हम हिंदी में ऐसे बोले तो बार, तो 2 जो है वो कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2 बार है। 2 का टेबल आता है आपको, 2 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 है ना, 2 2 ज़ार 4 होता है। 2 + 2 करेंगे तब भी 4 आएगा। 2 में 2 प्लस कीजिए, देखिए 2 है और 2 में 2 मिला दीजिए, 2 के बाद 3 4, 2 + 2 भी 4 होता है और 2 2 ज़ा भी 4 होता है। एक हम इसी 2 का ही एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं, 2 + 2 + 2 + 2। नाउ हियर विच नंबर इज रिपीटेड, 2 ही रिपीट हो रहा है ना, 2 ही रिपीट हो रहा है। 2 कितनी बार है, कितनी बार हम ऐड कर रहे हैं 2 को, 1 2 3 4, टोटल 4 2s हैं जिनको कि हम ऐड कर रहे हैं। 2 + 2 + 2 + 2, ठीक। 2 को कितनी बार कर रहे हैं हम, 4 बार, है ना, 4 टाइम्स। अगर आप ऐसे प्लस करें 2, उसमें 2 प्लस कीजिए, कितना आएगा, 2 + 2 इज 4, यस, 2 + 2 इज 4 होता है। अब इस 4 में 2 को प्लस कीजिए, ये जो 4 है हमारा, इसमें 2 प्लस कीजिए, 4 है माइंड में, उसमें 2 और ऐड कीजिए, 4 के आगे से गिनिए, 4 के आगे से 5 6, तो ये हो गया अब हमारा 6। इस 6 में 2 प्लस कीजिए, 6 है उसमें 2 प्लस करना है, 6 के आगे से काउंट कीजिए, 7 8, आई विल गेट 8, मतलब कि 2 + 2 + 2 + 2 इज 8, है ना। हमारा आंसर क्या आया, 2 + 2 + 2 + 2 इज 8, 2 + 2 इज 4, 4 + 2 इज 6 एंड 6 + 2 इज 8। ये हमने ऐड किया, रिपीटेड एडिशन। अब इसी को हम कर रहे हैं, यहाँ पे 4 को 4 टाइम्स 2 है, 4 बार 2, 4 बार 2, 4 टाइम्स 2, 4 2 ज़ा 8। सेम आंसर आया ना हमारा, यहाँ भी 8 आया था, 2 + 2 + 2 + 2 इज 8, 4 2 ज़ा 8। तो इतनी बार प्लस करने से अच्छा है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम्स 2 इज 8, 4 2 ज़ा 8। दिस इज रिपीटेड एडिशन एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन। तो रिपीटेड एडिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली रिपीटेड एडिशन, या रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। इसको जो है इसको अब हम करके देखते हैं। हमारा ये क्या है, 6 है, कितनी बार है, 1 2 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स क्या है, 6, 3 बार 6, 3 टाइम्स 6, 3 6 ज़ा कितना होता है, 3 का टेबल आता है ना आपको, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। हमारा आंसर क्या है, यहाँ तो हमें सिर्फ 3 लिखना है लेकिन हम इसको चेक कर रहे हैं, 3 6 ज़ा 18 होता है। और इसको प्लस करके देखिए आप, 6 में 6 को पहले प्लस कीजिए, 6 + 6 करके देखिए कितना आता है, 6 को माइंड में रखिए और एक 6 को फिंगर पे रखिए, ठीक है, एक 6 को माइंड में और एक 6 को फिंगर पे रखिए। अब 6 के आगे से गिनिए, जो माइंड में है 6, जो माइंड में है 6 उसके आगे से गिनिए, 7 8 9 10 11 12, कितना आया, 12 आया ना, देखिए 7 8 9 10 11 12, कितना आया, 12। तो ये दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 12। इस 12 में अब ये वाला 6 प्लस कीजिए, इस 12 को माइंड में रखिए, अगेन 6 को फिंगर पे लीजिए, माइंड में 12 है, 12 के आगे से काउंट कीजिए, 12 के आगे 13 14 15 16 17 18, कितना आया, 18। और यहाँ भी हमारा 3 6 ज़ा 18 है ना। तो रिपीटेड एडिशन में 18 आया, मल्टीप्लाई करने से 18 आया, मतलब रिपीटेड एडिशन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू
रिपीटेड एडिशन। आई होप ये आपको समझ में आया है रिपीटेड एडिशन वाला कॉन्सेप्ट। अब अभी हम आगे और करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देख लेते हैं बी। बी क्या है? 3 into 4 is equals to, चलिए ये देखना है, ये दोनों तरफ मतलब बराबर होना चाहिए। 3 into 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 4 जा कितना होता है? 12 होता है। तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आएगा? 3 के टेबल में 12 कब आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, दोनों तरफ 12 हो गया। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, मतलब ये तो हो गया बराबर। अगर आप ऐसे देखें 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो जो आंसर आएगा वही 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। मतलब नंबर भले आगे पीछे हो जाए पर हमारा जो प्रोडक्ट है, जो आंसर है वो सेम आएगा, बिकॉज हमें यहाँ पे करना है मल्टीप्लाई। इसका मतलब हुआ 3 times 4, 3 4s, 3 बार 1 2 3, 3 times 4, 3 बार 3 बार हम 4 लिख रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा? 4 में 4 प्लस कीजिए, कितना आता है? 4 + 4 कितना होता है? 4 माइंड में रखिए, 4 दूसरा 4 फिंगर पे रखिए, कितना आएगा? 4 के बाद 5 6 7 8, कितना आया हमारा आंसर? 8। अब इस 8 में 4 को प्लस कीजिए, 8 को माइंड में रखिए, 4 को फिंगर पे रखिए। अब 8 के आगे से गिनिए, 8 के आगे से 9 10 11 12, कितना आएगा? 12 है ना। जब इन तीनों को प्लस किया तो 12 आया। गॉट इट? 3 times 4 is 12। यहाँ पे क्या मतलब हुआ? 4 3s, 4 times 3, 4 बार 3, 3 कितनी बार? 4 टाइम्स। करके देखिए, 3 में 3 प्लस कीजिए, 3 + 3 कितना होता है? काउंट कीजिए, 3 और फिर उसमें 3 प्लस कीजिए, 3 माइंड में है, 3 फिंगर पर है, 3 के बाद 4 5 6, कितना आया? 6। इस 6 में 3 को प्लस कीजिए, अगेन 6 में 3 को प्लस करना है, 6 के आगे से गिनेंगे, 7 8 9, कितना आया? 9 आया। अब इस 9 में 3 प्लस कीजिए, 9 के आगे से गिनिए, 10 11 12, टोटल हमारा कितना आया? 12 एंड हियर ऑल्सो 12। मतलब 4 को आप 3 टाइम्स लिखते हो, प्लस करते हो, 4 को 3 बार प्लस करोगे तो 12 मिलेगा, और 3 को 4 बार लिखोगे तो आपको 12 मिलेगा। गॉट इट? 4 3s एंड 3 4s, दोनों का आंसर सेम आएगा। 3 4s 12, 4 3s 12, दोनों तरफ बराबर आएगा। नेक्स्ट है हमारा सी। सी क्या है? डैश माइनस मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए कौन सा नंबर दूसरी तरफ मिसिंग है, हम ऐसे भी देख सकते हैं। इक्वल टू का मतलब होता है जो इधर है वही इधर होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इक्वल टू का मतलब होता है सेम टू सेम, आंसर सेम टू सेम, ठीक है, आंसर सेम टू सेम। इक्वल का मतलब ही होता है जो इस तरफ है सेम वो उस तरफ है। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर? 2, जो नंबर मिसिंग है। एक तो ये तरीका है करने का, 2 यहाँ 8 यहाँ 8, अब यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। या दूसरा क्या तरीका है? 8 2 कितना होता है? आई होप आपको टेबल्स आते हैं 10 तक, है ना। तो 8 2 16, ठीक है, 8 2 16। तो यहाँ पर भी हमको 16 ही चाहिए। 8 के टेबल में 16 कितनी बार में आएगा? 8 2 16,
अगेन 2 8 ज़ा 16, तो दोनों तरफ सेम आना चाहिए, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारा हो गया ये भी। नेक्स्ट क्या है हमारा, 5 + 5, 5 + 5 = डैश, सेम ऊपर की तरह ही है ये भी। 5 + 5, 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, वी विल राइट हियर 2 × 5, 2 × 5, 2 बार 5, 2 5 ज़ा 10, 5 + 5 10, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। Now we are left with question number 20 and 21 and that we will do in the next video। में अगले वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, रिपीटेड एडिशन वाला। we will do such questions in the upcoming videos, in the upcoming chapters also, okay। we'll meet in the next video, thank you।